میں آپ کو بڑے مزے کی چیز دکھانے لگا ہوں. ذرا غور سے دیکھیے. دیوار سے لگا ہوا یہ شخص ایک ایسا شخص جس نے 8 فروری 2024 کو تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے سہولتکاروں کو دیوار سے لگا دیا. اس کی پارٹی کو دیوار میں چننا چاہتا ہے, یعنی بین لگانا چاہتا ہے. اور اس کی اپنی حالت دیکھیے کہ جب وہ شخص عدالت میں پیش ہوا تو اس کے برابر میں دیوار سے لگا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر اگزامپل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی حیثیت دیکھیں اور اس کے بعد آپ اپنی خواہشات دیکھیں. ایک دوسری تصویر دکھانے لگا ہوں, ملاحظہ کیجئے. یہ صنم جاوید خان ہے. اس کے شانے کے اوپر ڈالی ہوئی اس چادر کے اوپر قیدی نمبر 804 اور پی ٹی آئی کا لوگو بڑے بڑے لوگوں کو جلانے کے لیے کافی ہے. السلام علیکم, میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کی وجہ سے ہم ہیں, جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں. چلے ہوئے کارتوسوں کو ایک دفعہ پھر ری لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک مرتبہ پھر عدلیہ پر ریٹائرڈ ججوں کی یلغار دکھائی دیتی ہے. ایڈ ہاک ججز کے نام کے اوپر جو فارمولا اب اپلائی ہونے جا رہا ہے, یہ آمروں کے دور میں پی سی او ججز جیسی ہی ایک اصطلاح نظر آتی ہے. اپیرنٹلی اندر خانے کیا ہونے جا رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. کتنے ججز ہیں جنہیں شدید شرمساری کا سامنا ہے اور وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے, اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے حامی بھر لی ہے. اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ڈیٹیلز میں شیئر کروں گا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے اس حالیہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا اندیا یا اشارہ دے دیا ہے. اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی جو بات ہے, جو خبر ہے, اس وقت مین سٹریم نیشنل میڈیا کی ٹاپ لیڈ ہے, اور اس ٹاپ لیڈ نے بڑوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. وہ سٹوری کیا ہے, اس سٹوری کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ڈیٹیلز بھی میں نے شیئر کرنی ہے. اس کے علاوہ چند وائرل ٹویٹس ہیں جو آپ کو ہلا کر رکھ دیں اس تمام معاملے کے اوپر, جن میں ایڈ ہاک ججز پی سی او کے ججز کی کیفیت کے اندر ایک نئے معاملے کے اندر آتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور پھر کچھ وائرل بیانات اور بولتی تصاویر. اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے. ایک اور گزارش, اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کیجئے. بیل آئیکن یعنی گھنٹہ یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھ کے ڈنڈے سے دبا دیجیے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا, ویل اینڈ گڈ, نہیں کیا کر لیجئے. آل ویڈیوز کا چیک مارک ہے اس کو آن کر دیجئے گا. زیادہ سے زیادہ کامنٹ کرنے ہیں تاکہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو انفارمیشن فلو ہے وہ انٹیکٹ رہے, اور جو ہمیں چیلنج درپیش ہے فائر وال جیسی مبینہ چیز کا, اس سے بھی ہم بردآزما ہو سکیں اور ہم اچھے سے آپ تک خبر پہنچا سکیں. عدلیہ پر ریٹائرڈ ججوں کی یلغار. ویسے یہ لفظ ریٹائرڈ جو ہے وہ پاکستان کی ڈکشنری میں, پاکستان کے عوام کی ڈکشنری میں ایسا ہے کہ جس کو ہم بھول نہیں سکتے. اس کیفیت کے لوگ ہمیں ہر جگہ ملتے ہیں, نظر آتے ہیں, کسی نہ کسی عہدے یا پوزیشن پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 4 ایڈ ہاک ججز کے نام تجویز کیے. 4 ایڈ ہاک ججز کے نام, جن میں سے 2 نے معذرت کر لی ہے. اب تک کی جو سب سے ٹاپ لیڈ یہ تھی کہ جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں نے ایڈ ہاک جج کے لیے رضامندی ظاہر کی, اور ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے معاملے کے اوپر 2 ریٹائرڈ ججز نے رضامندی ظاہر کر دی. جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود نے بھی ایڈ ہاک جج کے لیے رضامندی ظاہر کی, جبکہ جنہوں نے انکار کیا ہے ان کے نام بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 2 عدد ججز ہیں. جسٹس مشیر عالم صاحب, انہوں نے انکار کر دیا ہے, اور ایک اور جج ہے جسٹس باقر نقوی صاحب, انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایڈ ہاک ججز کا فارمولا ہے کیا؟ مشرف کے دور میں ایک نئی اصطلاح سامنے آئی تھی جسے پی سی او ججز کا نام کہا جاتا تھا. تو وہ پی سی او ججز کیا کرتے تھے, وہ اچانک سے لائے گئے اور جو اصل ججز تھے ان کی جگہ پر ان کو ریپلیس کر کے ان کو پوزیشن دی گئی, عہدے دیے گئے, اور پھر اپنی مرضی کے کام لیے گئے. اب یہ جو ایڈ ہاک ججز ہیں, ان کے لانے سے متعلق جو قانون دان ہیں, جو اس وقت آئین اور قانون کے اوپر دسترس رکھتے ہیں, یہ میری رائے نہیں ہے, ان کی رائے ہے, وہ سمجھتے ہیں کیونکہ عدلیہ کے اندر, خاص طور پر سپریم کورٹ کے اندر اکثریت کی جو رائے ہے وہ اس وقت ایسے فیئر سے نہیں ڈر رہی جس فیئر سے باقی 4-5 ججز ڈر جاتے ہیں. تو اس رائے کو مزید تقویت دینے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے ایڈ ہاک ججز کو انڈکٹ کیا جا سکتا ہے.
और फिर हाल ही में जो एक रिव्यू अपील गई है, तो फुल कोर्ट जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके ऊपर रिव्यू अपील गई है। तो वो रिव्यू कराया जाए तो किससे कराया जाए, तो उसमें भी किरदार एडहॉक जजेस का हो सकता है। और उनमें से 2 जजेस का नाम तो आपने सुन लिया, बाकी 2 ने माजरत कर ली, और वो सोशल मीडिया के ऊपर जो वावेला मचा है उसके बाद माजरत हुई है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। लेकिन इस स्टोरी के बीचों बीच एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुआवनत या मुशावरत का इंदिया दे दिया। ये स्टोरी क्या है, मैं स्टोरी शेयर कर देता हूं। इंतहाई अहम मामले के पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ खान खोसा ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ते के लिए तैयार हैं। हमारी फॉर्म 47 को लेकर शिकायत ज़्यादातर नून लीग और MQM से मुताल्लिक हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने कहा कि PTI एक सियासी जमात है और रहेगी। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरख्वास्त भी नहीं जजों के सामने लगी और इसकी कबूलियत का इम्कान बहुत कम होता है। इसलिए अगर ज़रूरत पड़ी तो तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया जा सकता है। ये सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब के रिमार्क्स हैं। अब मैं ज़रा जिस जज साहब ने एडहॉक जज बनने से माजरत की है, मैं उनकी स्टोरी डिटेल से शेयर कर देता हूं। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत, सरदार तारक और मजहर आलम रजामंद है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए अपने खत में कहा कि अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा इज्जत दी है। एडहॉक जजेस नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर जो मुहिम शुरू की गई उससे शदीद मायूसी हुई। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने मजीद लिखा कि मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत करना चाहता हूँ। दूसरी जानिब ज़राए का बताना है कि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रजा बाकर नकवी वो भी इससे इनकार कर चुके हैं अब तक की ताज़ा इत्तलात के मुताबिक। अब एक और टॉप स्टोरी शामिल करते हैं, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगना। इस पाबंदी लगने के मामले के ऊपर जब अता तारर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद से ये दुनिया भर के मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल मीडिया की टॉप लीड है और तमाम इंटरनेशनल मीडिया इसको यूं दिखा रहा है कि हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले की वजह से अदलिया के हुकूमत से ताउन ना करने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस फैसले के पीछे करार दे दिया। ये इंटरनेशनल मीडिया की टॉप लीड है। हर चैनल CNN, BBC, स्काई न्यूज, इंडिया के चैनल्स, बांग्लादेश के चैनल्स, फ्रांस के चैनल्स, ऑस्ट्रेलिया के चैनल्स, चाइना के चैनल्स, सब इसको एज ए टॉप लीड कंसीडर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। इससे पहले कि मैं वायरल ट्वीट शामिल करूं, 2 अदद वायरल तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। आज एक मज़े की तस्वीर आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आपको इसको बगौर देखना है। मुलाजा कीजिएगा कि दीवार से लगा हुआ ये शख्स एक ऐसे शख्स को और उसकी पार्टी को दीवार से लगाना चाहता है जिसने 8 फरवरी 2024 को तमाम सियासी जमातों और उनके सहूलतकारों की सियासत का जनाजा निकाल दिया था। कोर्ट रूम में खड़े हुए इस शख्स को आप दीवार से लगे हुए देख सकते हैं। यह शख्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के ख्वाब देख रहा है। इसी तरह की एक और बोलती तस्वीर में शामिल करता हूं, ये मुलाजा कीजिए। ये सनम जावेद खान है जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने सनम जावेद खान को जुमेरात तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत करते हुए फैमिली के साथ जाने की इजाज़त दी थी। बाहर निकलते ही उनके ऊपर एक चादर देखी जा सकती है शाने के ऊपर, जिसके ऊपर कैदी नंबर 804 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिग्नेचर साइन मौजूद है। ये बहुत सारे लोगों को जलाने के लिए काफ़ी है। तो आज की 2 अदद बोलती तस्वीर मैंने आपको दिखानी थी। आप कमेंट्स करना चाहें तो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करता हूं, मुलाजा कीजिए। इमरान रियाज खान कहते हैं एडहॉक जजेस वाले मामले को रोकने के लिए सबसे अहम किरदार वकला का होना चाहिए, वरना इंसाफ से मजाक का यह नया सिलसिला चल निकलेगा। बाकी रिटायर्ड जजेस को भी इन तारीखी लम्हात में कौम की उमंगों के ऐन मुताबिक खुद को दूर रखना चाहिए। जो काम तमाम हाजिर मौजूद जज साहबान नहीं करना चाह रहे उसके लिए खुद को पेश ना किया जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट और फेयर कमेंट है। अच्छा, उसके बाद हामिद मीर साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 जनवरी को हुक्म दिया कि आज के बाद किसी पाकिस्तानी शहरी को लापता नहीं किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की रोजाना खिलाफ वर्जी होती है। तहरीक इंसाफ के कई कारकुन और उनके रिश्तेदार आज भी लापता हैं, जिनकी बाजियाबी के लिए कई दरख्वास्तें जेर समात हैं और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इसके ऊपर बात नेशनल मीडिया,
हमारा जो बिकाऊ मीडिया है वो तो नहीं करना चाह रहा, रुदाली मीडिया वो तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन जितनी आवाज़ हम उठा सकते हैं हम मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा सोशल मीडिया के ऊपर उठा रहे हैं। वैसे अब मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल मीडिया ही है। और यह मकबूल जान साहब का ट्वीट शामिल करता हूँ, वो कहते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के खिलाफ भी गद्दारी के मुकदमे की कार्रवाई होगी। पाकिस्तान पुलिस के थके हारे सिपाही, FIA के चालाक अफसरान, एजेंसियों के जासूस एक साथ तमाम मुल्कों की सरहदें अबूर करते हुए यूरोप, बरतानिया और अमेरिका की सरहदों में दनदनाते हुए दाखिल होंगे और पकड़ धकड़ करेंगे और पाकिस्तान ले आए। एक अल्ताफ हुसैन साहब तो आपसे पकड़े नहीं गए जिनको आपने गद्दार डिक्लेयर किया था, बहुत माजरत के साथ। क्या यार, वो मैं देख रहा था एक वो पंजाब के एक टाइम पे IG साहब हुआ करते थे, वो कहते थे हम नौजवानों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे अगर उन्होंने सोशल मीडिया पर बोलना बंद नहीं किया। क्या पिद्दी का शोरबा भाई। 500 रुपये में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 1000 रुपये में डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है। 3 शनाख्ती कार्ड लोग बना के फिर रहे हैं इस मुल्क के अंदर आप ही के आशीर्वाद से, यानी कि इदारों के आशीर्वाद से। तो फिर आप इसको आप कैसे कंसीडर करते हैं? कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की। पहला वायरल बयान, इमरान रियाज खान, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे कर लेते हो यार? कितना बड़ा आदमी है और कितना मजबूत आदमी है कि पूरे का पूरा निज़ाम इस वक्त लरज रहा है, कांप रहा है, डर रहा है इस आदमी के खौफ से। और वो जो निज़ाम लरज रहा है, ये सब कुछ देखने के बावजूद भी पता नहीं यार कैसे कर लेते हैं यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी, राना सनाउल्लाह साहब, ये अब गौर थी वे, सही गौर थी वे, रात तवज्जो। राना सनाउल्लाह साहब, माइट इज राइट में कौन सा उसूल होता है? यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा उसूल होता है? रोना धोना बंद करे, जो आपसे बन पड़ा वो आप करें, जो हमसे बन पड़ा वो हम करेंगे। शर्म तुमको फिर भी नहीं आनी। मैं इतना कहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार? बेगारती का नेक्स्ट लेवल। तुम्हारे पास कोई MNA की सीट नहीं है यार, तुम जीतते नहीं हो। मतलब इस तरह तो मुझे आप मुल्क का सदर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पब्लिक चॉइस होती है वो पब्लिक चॉइस होती है। कैसे कर लेते हो यार? आगे चलते हैं जी। मोहम्मद जुबैर साहब, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला नवाज शरीफ की मर्जी से हुआ। नून लीग ने 2 सालों में हर हरबा आजमा कर देख लिया। अब इनको समझ आ गई है हम तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। इनको आइडिया हो गया है, इनको वाकई आइडिया हो गया। और ये मतलब ये वो कहते ताबूत में आखिरी कील अपने हाथ में पकड़े हुए हथौड़े से लगाने जा रहे हैं। और इनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि इसका नुकसान इनकी अपनी जमात को हो चुका है, तबाही के दाने पर पहुंच चुके हैं, लेकिन किए जा रहे हैं। पर मैं कहूंगा कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? आगे चलते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, फेयर एंड वर्थ लिसनिंग कमेंट। वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट क्या अक्ले कुल है? ये मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट क्या अक्ले कुल है या सबसे ज्यादा पावरफुल है? क्या अक्ले कुल है या सबसे ज्यादा पावरफुल है? एस्टैब्लिशमेंट हर जगह हारी है। एस्टैब्लिशमेंट से ज्यादा ताकतवर अल्लाह की जात है। ट्रंप अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं होगा। ट्रंप और इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं और इनमें बहुत मुमासलत है। अब ये वो लोग हैं जिनके बारे में आम तासुर ये है कि ये मुक्तदरिया के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं। इनकी हालत ये हो गई है, अगर ये बोलना शुरू हो गए हैं तो आप समझें कि फिर आप तो ना ही समझें। फिर भी मैं इतना कहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। आखिर में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इमरान खान साहब इस वक्त फुल फ्लैज फॉर्म के अंदर है। इस वक्त वो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। इस वक्त उसके एक इशारे के ऊपर पूरा पाकिस्तान बाहर निकल सकता है। और हुक्मरान इत्तेहाद ने जो हरकत कर डाली है, इसका खमियाजा उनको आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है। हालात जिस नहज पर भी चले जाएं, भले इससे कोई और कुव्वत फायदा उठा जाए, याद रखिएगा तारीख या मौरख अगर बहुत ज्यादा बेगैरत ना हुआ और उसके कलम के अंदर स्याही बाकी बची और उसके कलम को की निब को तोड़ा ना गया, तो वो मौरख ये जरूर लिखेगा कि पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसा आ गया था जिसमें नून लीग जैसी जमात को, जो हमेशा फस्ताई हरबे अपनाती रही है और जो हमेशा आमराना ताकतों का साथ देती रही है, वो खुलकर खेलने की हालत या कैफियत के अंदर नहीं थी। तो उसने आखिर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसके पॉलिटिकल लीडर को दीवार से लगाने के चक्कर में अपने आप को दीवार में चुनवा लिया। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।